آپ میں سے سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. جو چھوٹے والے میسیجز میں ریکارڈ کرتی ہوں وہ آپ آگے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سے ہمیں اس کام کو کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام سب تک پہنچا سکے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں چن لے، کیونکہ اگر ہم نہیں کریں گے تو آنیسٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا کام کسی اور سے بھی کرا لیں گے. یہ ہماری نصیب کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں چن لے کسی طرح سے اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی ایک پیغام بھی دوسرے تک پہنچا دے. آمین ثم آمین. صرف تھوڑا سا امیجن کیجئے، آپ کا گھر ہے، گھر کے باہر آپ ہی کے شہر کی کوئی ایک عورت کھڑی ہو کے کہتی ہے کہ یہ میرا گھر ہے، تو آپ کیا کہو گے؟ نہیں، یہ میرا گھر ہے. بچوں کے بارے میں آپ دیکھیے، کبھی کوئی ایسا کہ کبھی آپ کو کوئی کہہ سکتا ہے یہ میرا بچہ، آپ کو کہ نہیں یہ میرا بچہ ہے. آپ کا چھوٹا گود میں پہلے دن کا بچہ بھی اگر ڈاکٹر نے جس نے ڈیلیور کیا وہ کہے کہ یہ بچہ آپ کا نہیں ہے یہ میرا، تو آپ کیا کہو گے؟ نہیں یہ میرا بچہ ہے، مجھے پتہ ہے یہ میرا بچہ ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اگر خامند کے بارے میں بھی آپ لڑنے بننے کو تیار ہو جائے، نہیں یہ میرا خامند ہے، کہ کس طرح سے ہمیں اپنی جو ہماری ملکیت ہوتی ہے ہم کتنی زور سے اس کو اون کرتے ہیں کہ نو یہ میری چیز ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل یہاں پہ بالکل وہی بات ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ملکیت ہے. تم کدھر بھاگے جا رہے ہو؟ اسی کا سارا کچھ ہے، اسی نے آخرت میں پوچھنا ہے. دیکھیں اس دنیا میں جو بھی زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اچانک کوئی چیز دے دی اور پھر کہا کہ اوکے آخرت میں آؤ گے اور تم پریشان ہو کہ یا اللہ یہ کیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہونا ہے. اس قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کھول کے بیان کر دی. سورۃ فرقان کی آیت نمبر 20 پڑھ کے دیکھیے گا، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میں سے ہر ایک وجعلنا، اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ اس کو جوڑا ہے کہ ہم نے پیدا کیا بعضہم لبعض، تم میں سے بعض کو ایک دوسرے کو فتنہ پیدا بنایا ہے ایک دوسرے کے لیے. وَجَعَلْنَا بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، کہ ہم نے ایک دوسرے کے لیے تمہیں فتنہ کیا ہوتا ہے؟ آزمائش ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں اَتَصْبِرُونَ، کیا تم صبر کرو گے؟ اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں جو تم عمل کرتے ہو، میں دیکھ رہا ہوں سارا کچھ. آپ وہ آیت پڑھ کے دیکھیے، اگر وہی آیت کو آپ کو سمجھ آ جائے، کیونکہ قرآن کی سب سے خوبصورت تفسیر یہی ہوتی ہے کہ جب آپ قرآن ہی سے اس کی تفسیر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں وَإِن تُبْدُوا، اور اگر تم سب ظاہر کر دو، ما جو فی انفسکم تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوہ یا تم اس کو چھپا لیتے ہو، یحاسبکم تو وہ حساب لے گا، کم کس کا؟ تمہارا، بھی اس کا اللہ. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے اور جو تم اس کو چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لیں گے. کتنی ڈرنے والی بات ہے. اگر ہمیں اس ایک آیت کی سمجھ آ جائے نا آنیسٹلی، تو میں کہتی ہوں اگلا سانس نکلنا بھی مشکل ہو جائے گا. کیونکہ دلوں کے اندر تو کئی دفعہ ایسی باتیں آتی ہیں کہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اوکے یہ والی چیزیں، بالکل میں صحابہ کی اگزامپل دیتی ہوں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ وہ بھاگے گئے، وہ کانپ اٹھے اور وہ بھاگے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے جا کے کہا کہ دیکھیے جو آیات اترتی ہیں، جو احکامات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اترتے ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ کے بارے میں، ہم اپنی جتنی بھی کوشش ہے اس کے مطابق ہم وہ بھی پورا کرتے ہیں، نیکی کی طرف بھی بھاگ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں جو کچھ ایسی بات آ جاتی ہے جس کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے، ہم کیا کریں گے؟ اس کا حساب ہم کیسے دیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کیا تم ویسے لوگ بننا چاہتے ہو کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آتا تھا، آپ کو یاد ہے اہل کتاب کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ تم اس شہر کے اندر سے گزرنا اور تم حتتن کہتے ہوئے گزرنا، اور انہوں نے کہا تھا سبیرا، ہم نے سنا واسینا، اور ہم نے ماننا کوئی نہیں ہے، تو کیا تم ویسے بننا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم پہ کہو سمینا و اطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے عمل کر دیا. تو جب انہوں نے یہ کہنا شروع کیا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انشاءاللہ اگلی جو آیت آئے گی میں آپ کو بتاؤں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ کسی نفس سے اس کی وسعت سے بڑھ کے حساب نہیں لے گا.
इतनी खूबसूरत बात कि देखिए दिलों के अंदर एक वो वसवसा होता है। देखिए दिल के अंदर क्या है, हमारा ईमान किधर होता है, हमारे दिल के अंदर की हालत है ना। जितना हमारा ईमान पुख्ता होगा उतनी अल्लाह सुब्हान तआला से रिलेशन पुख्ता होंगे, उतनी अल्लाह से मोहब्बत ज्यादा होती है। और वहीं पे वसवसा भी शैतान किधर हमला करेगा, जहाँ पे खजाने जमा है उधर ही तो शैतान आता है हमला करने के लिए, फिर वसवसा भी वहीं डालता है। तो ऐसे ख्यालात जिन पे हमारा बस नहीं है ना, उस पे हमारी पकड़ नहीं होगी। लेकिन वो ख्यालात जिनको हम पालते हैं अपने अंदर, जब हमें किसी पे गुस्सा आता है हम वो ख्यालात अपने दिमाग में लाते हैं, फिर हम दिल से उसको गुस्से में बैठे होते हैं, फिर हम पूरा प्लान करते हैं कि अच्छा अब नेक्स्ट टाइम जब मैं उसके सामने जाऊंगी तो मैं उसको सबक सिखाऊंगी, मैं उसको ये कहूंगी। ऐसा होता है ना। या फिर हम पूरे वो ख्यालात और अपने दिल में रख के वो जो प्लान करते हैं ना, अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि देखिए जब तुम अमल करते हो तो ये जो हमारे कातिबीन बैठे हुए हैं ना, ये उसके लिखते हैं, क्योंकि वो जब अमल में आती है कोई चीज तो वो तभी लिख सकते हैं। लेकिन तुम्हारे दिल के अंदर जो हाल है, तुम्हारे दिल के अंदर की बात सिर्फ वो अल्लाह सुब्हान तआला ही जानता है। और अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हान तआला उन पे पर्दे ही डाले रखे। जैसे इस दुनिया में अल्लाह सुब्हान तआला ने कितनी ऐसी चीजें होती हैं, आप बिलीव करें कि कभी हम सोचते हैं कि या अल्लाह अगर ये बात लोगों को पता लग जाए जो मेरे अंदर है तो लोग तो हमें मेरा ख्याल है इस्लाम करना भी छोड़ दें। लेकिन ये अल्लाह की रहमत ही है कि अल्लाह सुब्हान तआला हर चीज पे पर्दे डाले रखता है और लोग हमें इतना नेक समझते हैं या हमें इतना अच्छा समझते हैं। या बाज दफा ये होता है कि पार्टीज में बाज लोग ऐसे होते हैं जो बड़े बबली किस्म के होते हैं, हर एक से बात कर रहे हैं, बड़े खुशी से इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। लोगों को नहीं पता होता उनके दिल का हाल क्या है, वो उसके बारे में क्या समझता है, क्या जानता है। जब हम किसी को मिलते हैं तो हम एकदम से जैसे कहते हैं, ओ माय गॉड यू आर लुकिंग सो नाइस, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ये है वो। और कई दफा वो इंसान इतना अच्छा नहीं भी लग रहा होता, लेकिन वो हाल कौन जानता है, वो अल्लाह सुब्हान तआला जानते हैं। अब फिर दुआ ये करनी चाहिए इस आयत से। मुझे तो ये डर लगता है कि या अल्लाह हमें मुनाफिकीन में ना रखना, कि हमारे दिल के अंदर कुछ और हमारे ज़ाहिरी में कुछ और हो जाए। या रब्बुल आलमीन हमें इन सारी चीजों से बचा के रखना, क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला ने कोई चीज छुपा के नहीं रखी है। सब कुछ बयान कर दिया कि आखिरत में क्या होगा, कैसे होगा। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि जब भी मेरा बंदा कोई ऐसा अमल इरादा करे तो अगर वो बुराई का इरादा करे तो उसको ना लिखो, जब तक वो अमल कर ले। जब वो कर लेगा तो उसकी एक बुराई लिखो, और अगर वो कोई अच्छाई का इरादा करता है तो उसकी एक अच्छाई लिख लो। और अगर वो जो इरादा किया था उसको वो अमल में ढाल देता है तो उसकी 10 नेकियां लिखे। देखो अल्लाह सुब्हान तआला इससे ज्यादा और क्या मोहब्बत करेंगे हमसे। और इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि जब मेरा बंदा बुराई का इरादा करता है तो फरिश्ते जनाब अल्लाह सुब्हान तआला से अर्ज करते हैं कि अल्लाह तेरा बंदा बुराई करना चाहता है, तो अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं रुके रहो। और जब वो इरादा तर्क कर देता है तो अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि इसकी एक अच्छाई लिख दो, इसकी एक नेकी लिख दो, क्योंकि इसने मेरे डर से इस बुराई का इरादा तर्क कर दिया। अल्लाह सुब्हान तआला तो हमारे मामले इतने खूबसूरत करते हैं। अब हम भी दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन हमें इस रास्ते की समझ अता कर, क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि जिससे वो मोहब्बत करता है, जिस पे वो अपनी रहमत करना चाहता है, उसको वो दीन की समझ अता कर देते हैं। आमीन सुम्मा आमीन। आगे देखिए, आगे क्या है कि अनफुसकुम औ तुफ़ू युहासिबकुम, कि अल्लाह सुब्हान तआला तुम्हारा हिसाब लेगा। फयगफिरु, बस वो माफ कर देगा, लिमन यशा, जिसको वो चाहेगा, व युअज़्ज़िबु, और वो अजाब देगा, मन यशा, जिसको चाहेगा। देखिए कितनी डर वाली बात है कि वो चाहेगा, वो जो हमारे दिलों में ख्याल हैं जिसको अभी हमने अमल भी नहीं पहनाया था, हमने ऐसे ही सोचा था कि हम किसी के बारे में कोई गलत बात सोच रहे हैं, तो अल्लाह सुब्हान तआला ने यहाँ पे क्या कह दिया कि वो चाहेगा तो वो माफ कर देगा, अगर वो चाहेगा तो वो उसका भी अजाब देगा। कि हम कितने बंदे हुए, हम किधर आजाद हैं। हमें अल्लाह सुब्हान तआला ने देखिए पूरी मखलूक जो आसमान और जमीन के दरमियान में है, एक इंसान और एक जिन्नात है, दो मखलूक ऐसी हैं जिसको अल्लाह सुब्हान तआला ने पूरी आज़ादी दी है कि वो अपनी आज़ादी के साथ अल्लाह सुब्हान तआला के आगे झुके। और हम फिर अल्लाह सुब्हान तआला कितने खुश होते हैं। फरिश्तों के दरमियान में कहते हैं कि देखा, तुम कहते थे कि तुम ऐसी मखलूक पैदा करने वाले हो, देखो मेरा बंदा कैसे मेरी इबादत कर रहा है। और अल्लाह सुब्हान तआला के जो अजाब का ये मामला होता है ना, कहते हैं कि हिसाब लेना और अजाब देना बिल्कुल टोटली डिफरेंट चीज है। अल्लाह सुब्हान तआला चाहे तो हिसाब ले के भी माफ कर दे,
और चाहे तो जिसको अजाब देगा वो तो अजाब तो डेफिनेट चीज हो जाती है ना, कि एक जो पर्चा था उसका रिजल्ट सामने आ गया और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उस दोज़ख में भेज दिया। अल्लाह ना करे कि हम उन लोगों में शामिल हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें उन लोगों में शामिल कर दे जो बगैर हिसाब किताब के जन्नतों में जाने वाले हों। अल्लाह की रहमत तो बहुत बड़ी है, और बस कोशिश, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारी कोशिश ही देखनी है ना, हमारा रिजल्ट क्या आता है उस कोशिश में, हम कामयाब भी होते हैं कि नहीं होते। देखिए दिल के मामले भी है ना, कि दिल से हमने इरादा किया, अल्लाह ताला उस पे भी अजर दे रहा है। आपने दिल में सोचा, उस पे भी नेकी मिल गई, अभी किया भी नहीं है, और बुराई का इरादा अगर किया तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इंतजार करवाते हैं कि इंतजार करो मेरा बंदा, शायद इस चीज से रुक जाए, और जब वो रुक जाता है तो फिर नेकी मिल जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था कि बर्बाद हो गया वो शख्स जिसकी अकाइयां उसकी दहाइयों से बढ़ गई। दहाई क्या है कि एक नेकी की जगह पे 10 नेकियों का सवाब मिलना, और वाकई में बर्बाद ही हो गया ना, जिसकी अकाइयां, जिसकी एक एक बुराई थी वो भी उसकी नेकियों से अगर बढ़ गई तो फिर क्या है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा ना कि इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक तमाम इंसानियत जो है वो खसारे में है। इन्नल लज़ीना आमनू व आमिलुस स्वालिहात व तवस्सौ बिल हक़्क़ि व तवस्सौ बिस सब्र। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला इन लोगों में शामिल कर दे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम दूसरों तक पहुंचाने वाले हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को राजी करने वाले हैं। आमीन सुम आमीन। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, आगे देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे हमें क्या फरमा रहे हैं। आप देख रहे हैं कुरान मेरी जिंदगी, हम करें आयत नंबर 284। अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी खूबसूरत आयात हैं, बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अमल करने वाला बना दे। आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं कि वल्लाहु, और अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पर कादिर है। अब हम आगे जो इसके साथ आयत पढ़ रहे थे उसमें क्या आता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो जिसको चाहेगा वो माफ कर देगा, जिसको चाहेगा अजाब देगा। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी जो सिफात उसके आगे लेके आ रहे हैं कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है, वो जो चाहेगा वो करेगा। हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम पे अदल ना करना उस दिन, क्योंकि अगर अल्लाह ने अदल कर दिया तो फिर तो हम खसारे में चले जाएंगे। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आप अपनी रहमत से हमें माफ कर देना, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में ये कहा है कि मेरी रहमत मेरी गज़ब पर हावी है, और आखिरत में अल्लाह सुब्हानहू तआला, इस दुनिया में अल्लाह की रहमत का सिर्फ एक हिस्सा है, 99% अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो रहमत है ना वो आखिरत में होगी। और अल्लाह ने खुद कहा है कि इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है। इन्नल लज़ीना आमनू व आमिलुस स्वालिहात, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुद से हमें जो कह दिया तो बस इतना ही बता दिया कि ये करोगे तो कामयाब हो जाओगे। तो अल्लाह, बार बार मैं ये चीज जो रिपीट करती हूँ उसकी वजह भी यही है कि या अल्लाह जितना मैं बोल रही हूँ उतना मुझे भी समझ आ जाए। और आगे कहते हैं कि आमन रसूल, के ईमान लाया रसूल। ईमान क्या है? ईमान जो है वो यकीन की वो हालत होती है जिसमें कोई शक ना हो। और ईमान किधर होता है? हमारे दिल के अंदर होता है ना। जितना पुख्ता ईमान होगा उतना हमारा अमल भी जाहिर होगा। आप देखिए, ईमान का बीज अगर हमारे दिल के अंदर हो और हमारे अमल में ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब जब आप बीज कोई बोएंगे तो वो निकलता है ना, फिर वो नजर आता है कि ये बीज बोया था, इसमें से ये फल निकल रहा है, ये दरख्त निकला, ये पौधा निकला, ये फल निकला, जो भी निकला तो जाहिर होगा ना। ऐसा हो नहीं सकता। बाज़ दफा आपने बड़ी कॉमनली ये बात सुनी होगी कि मेरे दिल में ईमान है, मेरा मामला अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ जो है, मेरा दिल में मुझे पता है, मेरा पर्दा मेरे दिल के। सबसे खूबसूरत जो मैं बहुत कॉमन बात सुनती हूँ, कहती है कि पर्दा जो होता है ना वो दिल का पर्दा होता है, वो नजर का पर्दा होता है। इतने खूबसूरत लफ्ज हम लोगों ने क्रिएट कर लिए, शैतान ने हमें इतना बहका दिया हुआ इन चीजों के लिए कि हम उन पे यकीन भी करना शुरू हो जाते हैं कि नहीं, दिल का पर्दा है, आंख का पर्दा। ऑफ कोर्स हमारे दिलों का भी पर्दे, आंख के, जो अल्लाह के हुक्म है उन पे पर्दे तो ना डालेना। तो फिर आमन रसूल, कि ईमान ले आया रसूल, बिमा उनजिला, उस पर जो उनजिला नाजिल किया गया, अलैहि, उसकी तरफ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ क्या नाजिल हुआ था? कुरान पाक नाजिल हुआ था ना। कुरान पे ईमान लाना क्या है कि समेना व अताना। इसमें बहुत दफा ये वाली बात आएगी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो अहकामात जिस तरह जिस वक्त अता किए, जिस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहे थे, और वो एक ही बात होती थी कि समेना व अताना, हमने सुना और हमने अमल कर लिया। क्योंकि यकीन होता है कि मेरा रब जो है, जो मेरा मालिक है, मेरा खालिक है, मेरा मुदब्बिर है, वो मेरे लिए गलत कैसे कर सकता है? वो तो मेरे लिए भलाई की बात ही करेगा ना।
तो सेकंड थॉट भी देने की जरूरत नहीं है। मिन रब्बी ही, उसकी रब की तरफ से। अब देखिए आज हम क्या कर रहे हैं, हम उसी कुरान को समझने की कोशिश कर रहे हैं ना। हम देख रहे हैं कि अल्लाह सुब्हान तआला ने आखिर हमें हुक्म क्या दिया। आज से पहले जब हम कुरान नहीं समझते थे, हम कुरान तो पढ़ते थे ना, हम में से सभी कुरान पढ़ते थे, लेकिन हमें पता ही नहीं होता था। फॉर एग्जाम्पल वो लोग जो फर्स्ट टाइम तफसीर के साथ सुन रहे हैं, मैं उनके लिए ये बात कहूंगी, जैसे मैंने जब फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो मैं खुद हैरान हो गई थी कि ओ माय गॉड, अल्लाह सुब्हान तआला ने तो ये बात भी ऐसे कही है, ये बात भी ऐसे की। जब हम अपनी नजर से वो आयत देख लेते हैं, हम सुन लेते हैं उसके बारे में, तो हमारा यकीन और पुख्ता हो जाता है। फिर जब हमारा यकीन पुख्ता होता है तो फिर आमना की वाली बात हो जाती है, और फिर अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह, जो ईमान का बीज हमारे दिल में बोया गया है, जिसको हमने अंदर अपने पाला है ना, इसको हमारे जवारे जो है ना, जो हमारा पूरा अमल जो है उसमें डाल दे कि देखने वाले को भी हम ऐसा लगे कि ये अल्लाह वाले हैं। देखिए बड़ी खुशकिस्मती की बात होती है जब अगर आपको कोई देख के दूर से पहचान ले कि ये अल्लाह वाला है। मुझे याद है कि एक दफा एक छोटी सी बच्ची से मेरी बात हो रही थी, छोटी बच्ची मीन्स कॉलेज गोइंग बच्ची थी, मेरी उससे बात हो रही थी, हिजाब के बारे में बात हो रही थी। तो मुझे इतनी खूबसूरत उसकी बात लगी। उसने कहा कि आयशा आंटी, मैं जब हिजाब लेती हूँ तो मुझे यूं लगता है कि मैं चलता फिरता दावा हूँ। मैं तो जुबान से भी कुछ नहीं कहती ना, मैं तो सिर्फ चल के एक सड़क पे जा रही हूँ, मार्केट में जा रही हूँ, स्कूल में जा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ या बुक्स ले रही हूँ, कहीं भी जा रही हूँ ना, मुझे देख के लोगों को पता चलता है कि ये अल्लाह वाला बंदा है। मेरे पास क्रिश्चियंस हैं, यहूदी हैं, जो भी पूरी दुनिया में, आखिर जब बाहर निकलते हैं तो हर तरह के लोग हमें देखते हैं। हमारा जो हुलिया होता है, आप देखें, अगर हम अल्लाह सुब्हान तआला ने जो यूनिफॉर्म हमें दिया है, हम वो नहीं पहनते तो हम डेफिनेटली लोग ज्यादा से ज्यादा क्या कहेंगे कि ये मैक्सिकन लग रहे हैं, या ईरानी कह देंगे, या कोई भी ऐसी चीज कह देंगे, हमारी शक्लो सूरत से जो भी उनको लगता है वो वैसे करेंगे। लेकिन अगर जब आप अल्लाह सुब्हान तआला का जो यूनिफॉर्म पहन के बाहर निकलते हैं तो दूर से लोग कह देते हैं ये अल्लाह वाला बंदा जा रहा है। अब उस बंदे पे फिर मैं ऑलवेज ये कहती हूँ कि अल्लाह सुब्हान तआला जो आपके यूनिफॉर्म पहनने वाले लोग हैं, उनके अमल भी ऐसे कर दे कि कहीं हम शर्मिंदगी वाले की बात ना बन जाए कि अल्लाह वाले लोग ऐसी हरकत कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए ये कितना बड़ा खूबसूरत दावा है। और उस बच्ची की बात मुझे इतनी प्यारी लगी जिसकी कोई हद नहीं, और इतनी इंकरेजमेंट मिली कि वाकई कि आप जब अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बाहर निकलते हैं तो कितनी बुराइयों से आप बच जाते हैं, और फिर अल्लाह की रहमतें कितनी आप पे नासिल होती हैं कि आप तो चलता फिरता दावा वातवासौ बिल हक के वातवासौ बिस सब्र, तो कुछ ना कहते हुए भी आप वातवासौ में आ जाते हैं ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह सुब्हान तआला यहाँ पे कह रहे हैं कि वो ईमान लाए रसूल, उस पर जो नाजिल किया गया था उसकी तरफ, उसके रब की तरफ से, वल मोमिनून। कितनी प्यारी बात है कि रसूल के साथ अल्लाह सुब्हान तआला ने मोमिनीन का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया कि वो तमाम मोमिन लोग भी इसी तरह से जैसे रसूल ईमान लाए थे, जिसमें कोई शक नहीं था उनको कि जो कुछ अल्लाह ने नाजिल किया है ये बरहक है और मुझे इस पे अमल करना है। इसी तरह से मोमिन भी उस दायरे में आ गए। ये बहुत प्यारी बात लगती है। कुल्लुन आमना, तमाम के तमाम जो मोमिन तमाम के तमाम, और रसूल कुल्लुन आमना, तमाम के तमाम हर एक ईमान लाया, बिल्लाही अल्लाह पर, व मलाइकतिही, और उसके फरिश्तों पर। अब देखिए ये ईमान बिल्लाह जो हमने शुरू में पढ़ा था कि सूरत बकरा के शुरू में हमने पढ़ा था ना कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूनस सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। वो सारी जो हमने आयत पढ़ी थी, आप देखें फिर आखिर में उसी का खुलासा आ गया कि जो गायब पर ईमान लाना था ना, ये फरिश्तों पर ईमान लाना, किताबों पर, रसूलों पर, वो सारी बात वही आ गई कि अल्लाह सुब्हान तआला वापस वही कह रहे हैं कि ईमान लाना इस बात पे ही तुम्हारे दीन को मुकम्मल करता है, व कुतुबी ही, और उसकी तमाम किताबों पर, व रसूली ही, और उसके रसूलों पर, ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रसूल, कि नहीं वो फर्क करते बैना अहदिन, किसी के दरमियान, में रसूल, रसूलों के दरमियान। देखिए ये कितनी खूबसूरत बात है, इसको अंडरलाइन कीजिए कि जब अल्लाह सुब्हान तआला हमारी बात कर रहे हैं ना, हम जब पढ़ते हैं तो अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि तुम किसी रसूल में फर्क नहीं कर सकते हो, ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रसूल। लेकिन जब वो अपनी बात करते हैं
हमने वो भी आयत पढ़ी थी ना कि वफ़द्दलना बादहुम इला बाद, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं मैंने फजीलत दी बाज को बाज पर, लेकिन जब तुम्हारे ऊपर बात आती है तो तुमने फर्क नहीं करना। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बाज नबियों से कलाम किया, बाज को मोअज़्ज़ात अता किए, बाज के दर्जात बुलंद किए। हर नबी के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो कुछ भी किताब दी, किसी को हिकमत अता की। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें जो बता रहे हैं कि तुमने फर्क नहीं उनमें करना, तुम हर नबी पे यकीन रखोगे और उस पर बिलीव करोगे कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से पैगाम लेके आए थे। वक़ालू, और वो सब ने कहा, सब में से कौन थे? वो तमाम मोमिनों ने भी ये कहा, समेना, हमने सुना, व अताना, और हमने अतात कर दी। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ऐसा बना दे कि जब भी हम कुरान की कोई आयत भी सुने तो एक ही लफ्ज हम कहे समेना व अताना, कि हमने सुन लिया और हमने अमल किया। देखिए कहें भी क्यों ना कहें कि हमारा वो रब जो हमारा मालिक है, हमारा खालिक है, हमारा मुदब्बिर है, जब उसने हमारे लिए कोई बात की तो वो कैसे गलत कह सकता है? वो कैसे हमारे लिए मुश्किल बात कह सकता है? वो तो हमारी आसानी की बात कहेगा ना। अल्लाह ताला तो खुद कुरान में ये कहते हैं कि ए बंदे, मैं तुझसे 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूँ। इतनी मोहब्बत करने वाला क्या कोई ऐसी बात कहेगा जो हम नहीं कर सकते? ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है ना। तो वो कौलो, और उन सब ने कहा समेना व अताना, कि हमने सुन लिया और हमने अतात की। वो फराना का बहुत खूबसूरत लफ्ज़ है, तेरी बख्शिश। इतना सा लफ्ज़ है, अल्लाह मगफिरली नहीं आया यहाँ पे, इतना खूबसूरत लफ्ज़ है। बिल्कुल आप अगर कंपैरिजन करें ना, अगर आप सोचे कि आप किसी को कह रहे हैं कि बेटा प्लीज मुझे पानी देना, या आप कहते हो कि आप ये साउंड कहते हो पानी 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 पानी, ऐसे कहोगे तो क्या बात आपको ज्यादा लगती है? कि एकदम से लगता है ना कि इमरजेंसी कोई होगी कि भागता है बंदा पानी लेने के लिए। बिल्कुल वही लफ्ज़ है कि ऐसे डूबते बंदे को जैसे या अल्लाह गुफरानक, से तेरी बख्शिश चाहिए मेरे अल्लाह, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू बस किसी तरह से मुझे माफ कर देगा तो या अल्लाह मैं कामयाब हो जाऊंगी। अदरवाइज मेरे अमाल लेके अगर मैं तेरे पास आ गई और अगर तूने हिसाब खोल दिया तो या अल्लाह मैं कहाँ जाऊंगी। और रब्बना, ए मेरे रब, कितनी खूबसूरत बात लगती है ना कि जब हम अपने रब को पुकारते हैं इतनी मोहब्बत आती है कि मेरे रब व इलैकल मसीर, और तेरी ही तरफ लौट के जाना है। ये भी देखे कितनी बड़ी बात है कि ये बात का अगर हमें एहसास हो जाए ना कि लौटना तो हमने उस रब की ही तरफ है, तो फिर हमारी ये दुनिया का मामला बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब हमें आखिरत की खबर नहीं रहती ना, आखिरत का डर नहीं रहता, तो फिर दुनिया में ऐसा दिल लगता है जिसकी कोई हद नहीं। फिर लगता है कि बस पता नहीं, हमने तो यहाँ से जाना ही नहीं है। हम अपनी तैयारियां तो देखें, हम एक शादी आप देखें घर में होती है तो हमारी तैयारियां क्या होती, अगर हमने कोई एक जोड़ा ही क्रिएट करना होता है तो हमारी तैयारियां क्या होती हैं, और हमने जिसकी तरफ लौट के जाना है वहां पे हिसाब आप देखें कैसा मुश्किल है, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार हमें कुरान में बताते हैं कि लौट कर तो मेरी तरफ ही आना है ना, कि इस दुनिया में जो कुछ तुम करके आए हो उसका हिसाब लूंगा। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं आगे, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसहा। इतनी खूबसूरत एक एक आयत इतनी खूबसूरत है। अब देखिए ये तमाम आयत जो है ना, इनको आयात दावात भी कहते हैं कि इनमें इतनी पूरा ईमान कामिल भी है इसके अंदर, और इतनी खूबसूरत दुआ है कि मुकम्मल दुआ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे कि जो इंसान रात को ये दुआ पढ़ के सोता है, ये दुआ उसके लिए पूरी हो जाती है। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप सबको ये दुआ जुबानी याद होगी, लेकिन जिनको जुबानी याद नहीं है वो जरूर इनको याद कर ले। ये आमन रसूलों से अगर आप याद करते हैं तो बहुत खूबसूरत दुआ है, छोटी सी है, 2 सिर्फ आयात है। अगर आप ये याद कर लेते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो इंसान 3 दिन ये रात को दुआ पढ़ता है उस घर में शैतान दाखिल नहीं हो सकता। अब देखिए कि शैतान के क्या करता है, हमारे दिल में वसवसे डालता है, हमारे घरों में लड़ाइयाँ जब होती हैं, हमारे घरों में परेशानियां आ जाती हैं, बीमारियां आ जाती हैं, ये सारी की सारी शैतानी चीजें जो होती हैं, इतनी बड़ी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें ये करम हम पे कर दिया कि ये दो आयात पढ़ने वालों के पास ये शैतान आ ही नहीं सकता। और सूरत बकरा का आपने पढ़ा था शुरू में जब मैंने इसकी फजीलत बताई थी कि जिस घर में सूरत बकरा पढ़ी जाए वहां पे शैतान ही नहीं दाखिल हो सकता। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने सूरत बकरा को इतनी खूबसूरती से समझ लिया तो आप इसको छोड़िएगा मत, क्योंकि ये क़यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ सूरत बकरा और सूरत आल इमरान हमारे आगे आगे चलेंगी और अल्लाह सुब्हानहू तआला से झगड़ा करेंगे अपने लोगों के लिए और कहेंगे या रब्बुल आलमीन, ये बंदा मेरा इस दुनिया में मुझे पढ़ता था, और हमारे हक में गवाही देंगी अल्हम्दुलिल्लाह। और एक साहिबान देखिए क़यामत के दिन का जो हमें तो गायब की बातें है ना, जो हमें कुरान से पता चलता है, जो हमें अहदीस से पता चलता है कि इतनी गर्मी होगी, इतनी शिद्दत की गर्मी होगी और प्यास का क्या आलम होगा, वहां पे क्या सारा जो मंजर पेश होता है, तो ये साहिबान की तरह हमारे सरों पे होगी। कहती जैसे परिंदों का झुंड होता है ना, कि जैसे झुंड पर आ जाता है तो वो साहिबान बन जाता है, इस तरह से सूरत बकरा और सूरत आल इमरान आएगी। पढ़ा करें इसको, इस पे अमल करें, इसको इस तरह से पढ़े जैसे हमने पढ़ा है ना, हमें इसकी समझ आ गई, इसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन की तरह पढ़े। आप बिलीव करें कि कुछ देर के बाद आपको ये पूरी जुबानी याद होनी शुरू हो जाएगी। आप इसको इस तरह से, अब इंशाल्लाह हम सूरत आल इमरान जब स्टार्ट करेंगे तो मैं कोशिश करूंगी कि जहां पे नहीं की बात आएगी, कि जो हुक्म है अल्लाह सुब्हानहू तआला के, जो करने के हैं और जो नहीं करने के, वो भी मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ। अभी तो हम नए नए स्टूडेंट थे आप सारे, और मैं आपको पढ़ा भी ऐसे रही थी कि अभी हम अंडरस्टैंडिंग हमें कुरान की थोड़ी सी हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह सूरत अल इमरान जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमारा लेवल एक ऊपर चला जाएगा और हम आसानी से समझने वाले हो जाएंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि वो अलैकल मसीर हमें समझ आ जाए। वैसे तो हर लफ्ज़ ही समझते वक्त ये दिल चाहता है या अल्लाह ये हमारे दिल में किसी तरह से बैठा दे। हमें ये पता है कि या अल्लाह तू सारा वक्त हमें देख रहा, पर बार बार भूल जाते हैं। या अल्लाह हमें हमेशा हमारे दिमाग में ये चीज बैठा दे किसी तरह से, हमारे दिल में अपना मोहब्बत जो पैदा है वो तो है ये, या अल्लाह हमें अपना खौफ दे दे। क्योंकि ये जो बुराई से रुकने वाली चीजें है ना, क्योंकि जैसे देखे हम बात करते हैं कितनी आसानी से हम किसी की चुगली लगा देते हैं। सबसे मैं कहती हूँ आसान और जो कहते हैं ना कि सबसे ज्यादा करने वाली बुराई वो यही बुराई है। क्योंकि आसान में इस लफ्ज में कहती हूँ कि जब भी हम फ्रेंड्स में बैठते हैं ना कोई बात कह देते हैं, किसी दूसरी दोस्त के बारे में बात हो जाती है, तो वो फिर इतनी आसानी से हम इतनी बुराइयां अपने नामा अमाल में ले आते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि या अल्लाह तो सूरत बकरा जो सबसे बड़ी कुरान की सूरत है, या अल्लाह ये खत्म होने वाली हो गई, या अल्लाह हमारे अमल में भी ढाल दे किसी तरह से। इंशाल्लाह आप देखते हैं कि आगे हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं। कहीं मत जाइएगा, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। आप देख रहे हैं कुरान मेरी जिंदगी, अल्हम्दुलिल्लाह। हम कर रहे हैं आयत नंबर 286। इसमें आप देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे क्या कह रहे हैं कि ला युकल्लिफु, नहीं तकलीफ देता अल्लाह नफ्सन, किसी नफ्स को, इल्ला मगर, वुसअहा, उसकी वसअत के मुताबिक। देखिए इसमें कितनी मोहब्बत अल्लाह सुब्हानहू तआला की नजर आती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं बंदे तू क्यों डरता है, मैं किसी नफ्स को उसकी वसअत से बढ़ के कोई चीज नहीं देने वाला हूँ। कोई अल्लाह का अहकाम ऐसा नहीं है जो इंसान पूरा ना कर सके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पे दिखाया कि ये कुरान जो है जब वो नाजिल हो रहा था तो उनकी जिंदगी, हजरत आयशा क्या कहती थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलता फिरता कुरान है। तो कोई इंसान की वसअत के मुताबिक ही अल्लाह सुब्हानहू तआला आखिरत में भी, अगर इसी आयत को आप इस तरह से लेके देखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आखिरत में भी जब हमारा हिसाब करेगा तो हमारी वसअत के मुताबिक ही करेगा। देखिए अगर एक इंसान है, उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतना नवाजा हुआ है कि वो मिलियंस अल्लाह की राह में देता है, एक इंसान है जिसके घर में खाने को भी कुछ नहीं है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला दोनों का हिसाब उसके मुताबिक लेगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने देखिए अगर हम नमाज जैसे पढ़ते हैं, आप देखिए जो बीमार होता है अगर वो नमाज नहीं पढ़ सकता खड़ा होके, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ओके बैठ के पढ़ लो। अगर बैठ के नहीं पढ़ सकते हो लेट के पढ़ लो। लेट के अगर मुश्किल है तो इशारे के साथ पढ़ लो। हर तरह की वसअत है। और अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ तक अगर वुजू करने का मुश्किल है तो तयम्मुम कर लो। अगर तयम्मुम भी नहीं कर सकते, वुजू भी नहीं कर सकते, फिर भी नमाज नहीं छोड़ सकते, नमाज फिर भी पढ़नी है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने देखिए आसानियां कितनी दे दी हैं। पहली जो उम्मतें थी उनके लिए ये था कि जब वो इबादत करने के लिए उनको उनको किसी खास जगह पे जाना पड़ता था ना, जैसे हम मस्जिद में जाते, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूरी जमीन को मस्जिद बना दिया कि जहां भी तुम हो तुम नमाज अदा कर सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा देखिए कि कितनी किताब का हमने पढ़ा था कि जब उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि जब तुम गोश्त खाते हो तो तुमने चर्बी उसकी पूरी उतारनी है। कितनी मुश्किल उनके ऊपर थी कि वो पूरी चर्बी उतारनी होती थी सिवाय वो उस चर्बी के जो हड्डी के साथ लगी हुई है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे ऊपर तो ये नहीं कहा ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा,
इसके अलावा हर चीज में आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारा दीन हमारे लिए आसान कर दिया। उन्होंने अपने लिए जो मुश्किल किया था, आप देखिए उनकी तौबा कितनी मुश्किल थी। आपको याद है जब मूसा अलैहिस्सलाम जो गए थे तौरा लेने के लिए, जब तूर पे, कोहे तूर पे गए थे, तौरा तूर दोनों मिक्स हो रहे, तूर पे गए थे, तो जब वो वापस आए थे तो लोगों ने बछड़े को खुदा बना लिया था। तो उनकी तौबा कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कबूल की थी कि जिन लोगों ने शिर्क किया था वो दूसरों को जिन्होंने एक दूसरे को कत्ल करेंगे, और क्योंकि उन लोगों ने उनको देखा और उन्होंने उनको मना नहीं किया तो उनका ये था कि वो उनको कत्ल करेंगे जिन्होंने शिर्क किया था। तो इतनी मुश्किल उनकी तौबा कबूल हुई थी। और हमारी उम्मत की देखिए कि एक कमरे में अगर कोई गुनाह होता है, आप एक कमरे में जाइए, अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने 2 रकात नमाज नफल पढ़िए, अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आज के बाद की मैं गुनाह नहीं करूंगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला सब गुनाह माफ कर देंगे। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। आप हर चीज को इसके ऊपर रख के देखिए तो आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत के, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत जो है ना, उसका एक हिस्सा इस दुनिया में है, 99 हिस्से इंशाअल्लाह आखिरत में अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत के मिलेंगे। दुआ किया करें कि या अल्लाह अपने अदल को हमें आखिरत में हम पे अपना अदल ना करना, क्योंकि अगर अदल हो गया तो हम तो बिल्कुल खसारे में चले जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी रहमत से हमें माफ कर देना। हमारी जो मोहब्बत अल्लाह सुब्हानहू तआला की हमारे दिल में है, हम जो अपनी कोशिशें कर रहे हैं या रब्बुल आलमीन, बस वो कबूल कर लेना। और हमारा हिसाब लिए बगैर, या अल्लाह आसान भी ना हिसाब लेना ही ना, हमारा खाता ही नहीं खोलना, बस हमें माफ कर देना या रब्बुल आलमीन, हम कलमा गो हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ तो कर सकते हैं ना। बहुत प्यारी हदीस मुझे लगी, मैंने कहा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि सही बुखारी की हदीस है 5228। हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए आयशा, मैं खूब जानता हूँ कि तुम कब मुझसे नाराज़ होती हो और कब तुम मुझसे खुश होती हो। तो हज़रत आयशा कहती है, मैंने कहा कि आपको कैसे पता है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम मुझसे नाराज होती हो ना, तो तुम मुझे कहती हो कि इब्राहिम के रब की कसम, कि कोई बात होती है ना, कहते नहीं नहीं नहीं, इब्राहिम के रब की कसम मैंने ये काम नहीं किया। और अगर तुम मुझसे खुश होती हो तो फिर कहती हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद के रब की कसम। तो हजरत आयशा कहती है कि मैं मुस्कुराने लगी और मैंने कहा कि हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, अल्लाह की कसम या रसूलल्लाह, मैं गुस्से में सिर्फ आपका नाम ही नहीं लेती हूँ। तो मुझे ये लगा, देखिए आजकल जो हमारी एज ग्रुप में है, उन्होंने ज़रूर ये देखा होगा कि एक ज़माना था कि जो बड़े होते थे ना, जब शादी के बाद तो बीवी खामद का नाम नहीं लेती थी, तो वो अक्सर बात होती थी तो मुन्ने के अब्बा ने ये कहा, तो बच्चे किसी एक बच्चे के नाम से ना उनको उस तरह से कह देते थे कि उन्होंने ये कहा तो उनकी ये बात है। फिर वो भी ज़माना हमने देखा हुआ है कि हस्बैंड एंड वाइफ जो है ना, वो इकट्ठे नहीं बैठते थे। जैसे अगर माँ सामने है या ताया है, चचा, मतलब घर के जो बड़े बुजुर्ग होते थे, उनके सामने मियाँ बीवी इकट्ठे भी नहीं बैठते थे, मतलब अलग अलग से बैठे होते थे। फिर एक ज़माना आया था जो बात का ज़माना, फिर आप सोच लें, मुझे हंसी आ रही थी, मैं याद कर रही थी क्योंकि मैं जब ये हदीस लिख रही थी कि मेरा ख्याल है आई वॉज इन सेकेंड ईयर, तो हमारी किसी जानने वालों की शादी हुई, तो शादी के बाद जब हम उनको मिलने के लिए गए तो वो मियाँ बीवी जैसे आए बाएं तो और बात कर रहे थे, तो उन्होंने एक दूसरे को जब वो बुलाए ना, तो कहे हनी ये बात ऐसे है, हनी ये बात ऐसे है, वो बेचारे तो हनी हनी कर रहे थे, हम शर्मिंदा काम का बैठे बैठे, क्योंकि अभी हमारी शादी नहीं हुई थी, तो लगता था ओ माय गॉड, ये कैसे बुला रहे हैं ना। अच्छा, उसके बाद तो इतना मजे की बात कि आफ्टर मेरा ख्याल है कि 5-6 साल के बाद वो कहीं बाहर चले गए थे। जब वो कपल वापस आया तो क्योंकि जानने वालों के थे, तो एक पार्टी में मिले, तो वहां पे फिर अब डेफिनेटली वो मोर रिलैक्स एक दूसरे के साथ हो चुके हुए थे। तो कोई बात हो रही थी, उससे बहस हो गई, और जब बहस हुई ना तो इतने मजे से कहे, मुझे उनका सेंटेंस याद आता है, हनी मुंह बंद करो, मतलब गुस्से से बोल रहे हैं लेकिन कह वो हनी रहे थे, और वो भी गुस्से से आगे से जवाब दे रही है कि आप चुप करें हनी, आपको नहीं पता ये बात कैसे होती है। मतलब वो लगता है कि अच्छा अब शादी हो गई है ना, तो अब हमारा जो दिल चाहेगा उस तरह से हम बुलाएंगे, विच इज लाइक क्यूट। मे बी ये हदीस ज़हन में जब मैं लिख रही थी तो मुझे ये सारी सिनेरियो याद आ रहा था, वो पिक्चर की तरह वो टाइम सामने आना शुरू हो जाता है कि कैसे टाइम बदलता है।